ایک چھوٹے سے شہر میں نواب خان نام کا ایک غریب تانگا چالاک رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بوڑھا گھوڑا اور ٹوٹا پھوٹا تانگا تھا، لیکن اس کا دل بادشاہوں سے بھی زیادہ امیر تھا۔ نواب خان ہر صبح فجر کی نماز کے بعد اپنا تانگا صاف کرتا اور بسم اللہ پڑھ کر روزی کمانے نکل جاتا۔ اس کی بیوی فاطمہ اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر میں اکثر کھانے کو نہیں ہوتا، لیکن نواب خان کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ ضرور رزق بھیجے گا۔ ایک دن شام کو نواب خان خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ پورے دن کوئی سواری نہیں ملی تھی۔ بچے بھوکے بیٹھے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ فاطمہ نے فکر مند ہو کر پوچھا، آج کیا ہوا؟ نواب خان مسکرا کر بولا، اللہ کی مرضی ہے، کل ضرور بہتر ہوگا۔ رات کو نواب خان نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، میرے بچوں کو رزق دے اور مجھے صبر عطا کر۔ آنسو گرتے رہے اور دل سے دعائیں نکلتی رہیں۔ اللہ کا کرم ہونے والا تھا۔ اگلے دن صبح نواب خان ہمیشہ کی طرح تانگا لے کر نکلا۔ شہر کے چوک میں عجیب سا منظر تھا۔ ایک بوڑھا فقیر زمین پر کانپ رہا تھا۔ لوگ گزر رہے تھے مگر کوئی نہیں رکا۔ نواب خان نے فوراً تانگا روکا اور اس کے پاس جا پہنچا۔ نواب خان نے پوچھا، بابا کیا مسئلہ ہے؟ فقیر نے کہا، بیٹا میں بہت بیمار ہوں اور اپنے گاؤں جانا ہے، لیکن پاس میں پیسے نہیں۔ نواب خان کے پاس خود بھی کچھ نہیں تھا، مگر اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ فقیر کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ نواب خان نے فقیر کو احتیاط سے تانگے میں بٹھایا۔ گاؤں دور تھا اور راستہ پہاڑی، پورا دن لگ سکتا تھا، لیکن نواب خان نے ایک پل بھی نہ سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ نیکی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ بوڑھا گھوڑا بھی جیسے ہمت کر کے آگے بڑھ چلا۔ راستے میں فقیر نے پوچھا، بیٹا تم خود اتنے غریب ہو، پھر بھی مدد کیوں کر رہے ہو؟ نواب خان نے جواب دیا، بابا میرا اللہ بہت کریم ہے، وہ مجھے ضرور بدلا دے گا۔ میں اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں تو وہ میرا خیال رکھتا ہے۔ فقیر چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ سورج ڈھلنے لگا اور گاؤں کا راستہ نزدیک آ گیا۔ نواب خان تھکا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا۔ فقیر بولا، بیٹا تم نے میری جان بچائی ہے، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ نواب خان نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ گاؤں پہنچ کر فقیر نے اپنی پرانی جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ نواب خان اسے اتار کر واپس جانے لگا تو فقیر بولا، ٹھہرو بیٹا، اور بھیتر جا کر ایک پرانا تھیلا لے آیا۔ نواب خان نے لینے سے انکار کیا، مگر فقیر بولا کہ یہ میری دعا ہے۔ نواب خان نے تھیلا تانگے میں رکھا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ رات ہو چکی تھی اور راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ نواب خان سوچ رہا تھا کہ گھر پہنچ کر بچوں کو کیا کھلائے گا، مگر اس کا دل پھر بھی مطمئن تھا۔ آدھی رات کو جنگل کے قریب سے گزرتے ہوئے نواب خان نے عجیب سی آوازیں سنی۔ کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس نے تانگا روکا اور غور سے سنا۔ آواز ایک عورت کی تھی۔ ڈر تو لگ رہا تھا، مگر اس کا ایمان مضبوط تھا۔ نواب خان نے بسم اللہ پڑھی اور آواز کی طرف بڑھا۔ ایک درخت کے نیچے ایک عورت اپنے بیمار بچے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، یا اللہ کوئی تو مدد کر۔ نواب خان نے پوچھا، بیوی کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرا بچہ بہت بیمار ہے۔ عورت نے بتایا کہ وہ شہر جا رہی تھی، مگر راستے میں بچہ اچانک بیمار ہو گیا، نہ پیسے ہیں نہ کوئی سواری۔ نواب خان نے فوراً کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شہر کے اسپتال پہنچا دوں گا۔ عورت کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ نواب خان نے عورت اور بچے کو تانگے میں بٹھایا۔ بوڑھا گھوڑا تھکا ہوا تھا، مگر نواب خان نے اسے پیار سے سمجھایا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے، جیسے وہ سمجھ گیا اور تیزی سے چل پڑا۔ رات کی تاریکی میں سفر جاری رہا۔ راستے میں عورت نے کہا، تم جیسے نیک لوگ آج کل بہت کم ملتے ہیں۔ نواب خان بولا، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ مخلوقن کی خدمت کرو، میں بس اس کی رضا چاہتا ہوں۔ عورت نے دعا دی کہ اللہ تمہیں دنیا آخرت میں کامیابی دے۔ صبح ہونے سے پہلے نواب خان شہر کے اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے بچے کا فوراً علاج شروع کر دیا۔ عورت بار بار شکریہ ادا کرتی رہی، مگر نواب خان بولا کہ شکر اللہ کا کرو، وہی مددگار ہے۔ پھر وہ خاموشی سے واپس چل دیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو گئی۔ فاطمہ دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نواب خان نے رات بھر کی ساری کہانی سنائی۔ فاطمہ نے کہا کہ اللہ آپ سے رضا ہو۔ بچے بھوکے تھے مگر سب نے صبر کیا۔ نواب خان بولا، اب دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ نواب خان کو یاد آیا کہ فقیر نے ایک تھیلا دیا تھا۔ اس نے تھیلا کھولا تو اندر سوکھی روٹیاں اور کھجوریں تھیں۔ بچوں نے خوشی سے کھانا شروع کر دیا۔ نواب خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، دیکھو اللہ نے رزق بھیج دیا۔ کھانا کھا کر نواب خان نے سجدہ شکر ادا کیا۔ فاطمہ نے کہا، اللہ پر توکل کبھی جایا نہیں جاتا۔ نواب خان بولا، ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا واپس دیتا ہے۔ سب نے الحمدللہ کہا۔ اگلے دن نواب خان پھر اپنے تانگے کے ساتھ شہر کے چوک میں پہنچا۔ آج کچھ سواریاں مل گئیں اور تھوڑے پیسے کما لیے۔ شام کو گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک مسجد تھی۔ نواب خان نے سوچا کہ کچھ پیسے صدقہ کر دوں۔ اس نے 3 روپے مسجد کے صدقہ باکس میں ڈال دیے۔ گھر پہنچ کر نواب خان نے باقی پیسے فاطمہ کو دیے۔ فاطمہ نے کہا کہ آج تو اچھا کمایا۔ نواب خان بولا،
हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे खुशी से उछल पड़े। रात को सबने मिलकर सादा खाना खाया। गरीब थे मगर दिल से शुक्रगुजार। कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहे। नवाब खान रोज मेहनत करता और जो मिलता उस पर शुक्र करता। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि नवाब साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग तैयारियां करने लगे। नवाब खान ने सोचा कि शायद आज अच्छी कमाई हो जाएगी, क्योंकि अमीर लोग तांगे का किराया ज्यादा देते थे। नवाब साहब की आमद का दिन आया। पूरा शहर सज गया था। नवाब खान भी अपना तांगा सजा कर लाया। बहुत से तांगे वाले वहां खड़े थे, सब अमीर लोगों को सवारी देने की उम्मीद में। नवाब खान ने बिस्मिल्लाह कही और एक तरफ खड़ा हो गया। अचानक एक बूढ़ी औरत नवाब खान के पास आई। उसके हाथ में सामान का भारी थैला था। उसने कहा, बेटा मुझे बाजार छोड़ दो। नवाब खान ने देखा कि वह बहुत गरीब थी। दूसरे तांगे वालों ने उसे मना कर दिया था। नवाब खान ने फौरन हाँ कर दी। साथ के तांगे वालों ने नवाब खान को ताने दिए। उन्होंने कहा, पागल हो क्या? अमीर लोग आए हैं और तुम गरीब को बैठा रहे हो। नवाब खान मुस्कुराकर बोला कि मैं अल्लाह की रजा कमाता हूं, पैसे नहीं। सब हंस पड़े और उसे बेवकूफ कहने लगे। नवाब खान ने बूढ़ी औरत को तांगे में बिठाया और सामान रख दिया। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मेरे पास सिर्फ 2 रुपए हैं। नवाब खान ने कहा, कोई बात नहीं, आप फिक्र न करें। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे। नवाब खान उसे बाजार ले गया। रास्ते में औरत ने कहा, तुम बहुत नेक दिल हो। नवाब खान बोला, यह मेरे वालिद की तालीम है। वह कहते थे, अल्लाह की मखलूकन की खिदमत करो। बूढ़ी औरत बोली, तुम्हारे वालिद सच्चे मुसलमान होंगे। नवाब खान बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार में औरत ने अपना सामान खरीदा। फिर नवाब खान से कहा कि मुझे वापस घर भी छोड़ दो। नवाब खान ने खुशी से हाँ कर दी। औरत का घर शहर से बाहर एक गांव में था। नवाब खान जानता था कि आज कमाई नहीं होगी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। शाम हो गई और नवाब खान औरत को घर छोड़कर वापस आया। आज पूरा दिन एक नेक काम में गुजरा। हाथ में सिर्फ 2 रुपये थे। घर पहुंचा तो फातिमा ने पूछा, आज कैसा रहा? नवाब खान बोला, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, एक जरूरतमंद की मदद की। अगली सुबह नवाब खान नमाज फजर के बाद तांगा लेकर निकला। आज घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चों ने भूख की शिकायत नहीं की। नवाब खान ने सबको हिम्मत दी और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। फातिमा ने दुआ की और नवाब खान रवाना हो गया। शहर के चौक में आज बहुत भीड़ थी। नवाब खान एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने चिल्लाकर कहा कि कोई है जो जख्मी आदमी को अस्पताल ले जाए। सब खामोश हो गए क्योंकि जख्मी के पास पैसे नहीं थे। नवाब खान फौरन आगे बढ़ा और बोला कि मैं ले जाता हूं। वह आदमी नवाब खान को एक गली में ले गया। वहां एक नौजवान सर से खून बहाता पड़ा था, गिरकर जख्मी हो गया था। नवाब खान ने उसे सहारा देकर तांगे में लिटाया और तेजी से अस्पताल की तरफ बढ़ा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू किया। नौजवान की जान बच गई। उसके साथी ने नवाब खान का शुक्रिया अदा किया। नवाब खान बोला, यह तो मेरा फर्ज था। साथी ने कहा, तुम बहुत नेक हो, अल्लाह तुम्हें जज़्ज़ा दे। नवाब खान बिस्मिल्लाह कहकर वापस चल दिया। दोपहर हो गई मगर कोई सवारी नहीं मिली। नवाब खान को फिक्र होने लगी कि घर में बच्चे भूखे होंगे, मगर उसने फिर अल्लाह का नाम लिया और कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने तेरी रजा के लिए काम किया, अब तू ही मेरा सहारा है। शाम होने को थी कि एक साहब तांगे के पास आए। उन्होंने कहा, मुझे स्टेशन छोड़ दो। नवाब खान ने खुशी से हाँ कर दी। वह साहब बहुत शरीफ और नेक मालूम होते थे। रास्ते में उन्होंने नवाब खान से बातें की और नवाब खान अदब से जवाब देता रहा। साहब ने पूछा, तुम कितना कमाते हो? नवाब खान ने सच्चाई से बताया कि कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं, मगर अल्लाह पर भरोसा है, वह कभी भूखा नहीं रखता। साहब ने कहा, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है। नवाब खान बोला, यह मेरे वालिदैन की दुआ है। स्टेशन पहुंचकर साहब ने किराया दिया। 5 रुपये थे, जो नवाब खान के लिए बहुत थे। नवाब खान ने शुक्रिया अदा किया। साहब ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और अंदर चले गए। नवाब खान ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही बच्चे दरवाजे पर आ गए। नवाब खान ने पैसे फातिमा को दिए। फातिमा ने बाजार से आटा और सालन का सामान मंगवाया। रात को सब ने मिलकर खाना खाया। नवाब खान ने बच्चों से कहा, देखो अल्लाह ने कैसे रिज़्क़ भेजा। बच्चों ने खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। रात को नवाब खान ने नमाज में खूब दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने कभी मुझे मायूस नहीं किया, मैं हमेशा तेरी राह में चलूंगा। फातिमा भी साथ दुआ कर रही थी। दोनों को यकीन था कि अल्लाह का करम जारी रहेगा। कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए। नवाब खान की नेकियां शहर भर में मशहूर होने लगीं। लोग कहते थे कि यह तांगाबान बहुत नेक दिल है, मगर नवाब खान को कोई फख्र नहीं था। वह कहता था कि मैं तो अल्लाह के हुक्म पर चलता हूँ। उसकी आजदगी देखकर लोग हैरान होते थे। एक दिन शहर में एक अमीर सेठ आया जिसका नाम सेठ करीमुद्दीन था। वह बहुत मालदार मगर गुरूर वाला आदमी था। उसे गरीबों से नफरत थी। उसने नवाब खान का तांगा बुलवाया। नवाब खान अदब से आगे बढ़ा और सलाम किया। सेठ ने तकब्बुर से जवाब दिया। सेठ ने कहा, मुझे बाजार ले चलो और जल्दी करो। नवाब खान ने तांगा चलाना शुरू किया। रास्ते में एक अंधा भिखारी सामने आ गया। नवाब खान ने तांगा रोका ताकि उसे कुछ ना हो। सेठ गुस्से में बोला, क्यों रुके?
तुम्हें भिखारी से क्या काम? नवाब खान चुप रहा। आगे जाकर एक बेवा औरत गिरी पड़ी थी। नवाब खान ने फिर तांगा रोका। सेठ चीखा, तुम पागल हो क्या? हर किसी के लिए रुकते रहते हो। नवाब खान ने नरमी से कहा, हुजूर, ये अल्लाह की मखलूकन है, इनकी मदद करनी चाहिए। सेठ बोला, बकवास बंद करो और चलाओ। बाजार पहुंचकर सेठ ने किराया देते हुए कहा, तुम फजूल बातें करते हो, अल्लाह पर तवक्कुल से पेट नहीं भरता, मेहनत से भरता है। नवाब खान बोला, जी हुजूर, मेहनत भी जरूरी है, मगर अल्लाह पर भरोसा सबसे अहम है। सेठ हंसा और बोला, तुम गरीब ही रहोगे। नवाब खान को सेठ की बातों से तकलीफ हुई, मगर गुस्सा नहीं आया। उसने दिल में कहा, अल्लाह सबको हिदायत दे। सेठ अपनी दुकान में चला गया। नवाब खान ने इस्तिगफार पढ़ी और आगे बढ़ गया। उसका दिल साफ था और ईमान मजबूत। उसी रोज शाम को नवाब खान को एक पैगाम मिला। शहर के काजी साहब ने उसे बुलाया था। नवाब खान परेशान हो गया कि काजी साहब ने क्यों बुलाया, मगर फिर उसने तवक्कुल किया और चल पड़ा। काजी साहब का घर बड़ा और खूबसूरत था। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। नवाब खान ने दरवाज़ा खटखटाया। खादिम ने अंदर बुलाया। काजी साहब मुस्कुरा कर मिले। उन्होंने कहा, नवाब खान, तुम बहुत नेक इंसान हो, तुम्हारी नेकियां मेरे कानों तक पहुंची हैं। नवाब खान शर्मिंदगी से बोला, यह तो अल्लाह का फजल है। काजी साहब ने कहा, बैठो। काजी साहब ने कहा, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेना है। नवाब खान घबरा गया। काजी साहब बोले, परेशान मत हो, यह भलाई के लिए है, कल सुबह मेरे साथ एक सफ़र पर चलना है। नवाब खान बोला, जी ज़रूर, हुक्म कीजिए। काजी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। घर लौटकर नवाब खान ने फातिमा को सब बताया। फातिमा ने कहा, शायद अल्लाह कुछ भलाई करना चाहता है। नवाब खान बोला, जो अल्लाह की मर्जी। रात भर दोनों दुआएं करते रहे। बच्चे भी खुश थे कि अब्बू काजी साहब के साथ जाएंगे। सबने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सो गए। अगली सुबह नवाब खान काजी साहब के घर पहुंचा। काजी साहब तैयार खड़े थे। उन्होंने कहा, चलो एक गांव जाना है। रास्ते में काजी साहब खामोश रहे और नवाब खान भी चुपचाप तांगा चलाता रहा। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम था। आधे रास्ते में एक हादसा हुआ। एक आदमी जख्मी होकर सड़क पर पड़ा था। काजी साहब ने कहा, नवाब खान रुक जाओ, मगर वह तो पहले ही रुक चुका था। उसने जख्मी को देखा। वह और कोई नहीं, वही सेठ करीमुद्दीन था जिसने कल उसे रुसवा किया था। काजी साहब यह सब देख रहे थे कि नवाब खान क्या करता है। नवाब खान ने बिना सोचे सेठ को उठाया और तांगे में लिटा दिया। उसने कहा, काजी साहब माफ करें, पहले इसे अस्पताल ले चलते हैं। काजी साहब मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक। नवाब खान ने तुरंत तांगा मोड़ दिया। अस्पताल में सेठ का इलाज हुआ। होश आया तो उसने नवाब खान को देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने कहा, नवाब खान, मैंने तुमको कल बुरा कहा था, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। नवाब खान ने कहा, यह मेरा फर्ज था, अल्लाह की मखलूकन की मदद करना। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं बहुत गलत था, मैंने गरीबों को हकीर समझा। आज समझ आया कि असली दौलत नेक दिल होना है। नवाब खान, तुमने मुझे जिंदगी का सबक दिया। काजी साहब ये सब देख रहे थे और खुश थे। बाहर आकर काजी साहब ने नवाब खान से कहा कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। नवाब खान हैरान होकर बोला, कैसा इम्तिहान? काजी साहब ने बताया कि शहर के एक यतीम खाने के लिए नज़ीर चाहिए था। एक ऐसा इंसान जो ईमानदार हो, नेक हो और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखता हो। इसलिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया। काजी साहब ने कहा कि वह फ़कीर, वह बूढ़ी औरत और वह जख्मी नौजवान और मेरे आदमी थे। मैं तुम्हारी नीयत और नरमी देख रहा था। तुमने हर मौके पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह दी। नवाब खान हैरान रह गया और बोला, मैंने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया। काजी साहब बोले, यही तो असल ईमान है। काजी साहब ने कहा, अब तुम यतीम खाने के नज़ीर हो, तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और रहने के लिए घर भी। तुम यतीमों की देखभाल करोगे। नवाब खान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उसके सब्र का फल दे दिया था। सेठ करीमुद्दीन ने भी तौबा कर ली। उसने यतीम खाने के लिए बड़ी रकम दान की। उसने कहा, नवाब खान, तुम मेरे उस्ताद हो। नवाब खान अपने ख़ानदान के साथ यतीम खाने में रहने लगा। वह यतीम बच्चों को प्यार से पालता और उन्हें अल्लाह का सबक देता। सब खुश थे और शुक्रगुजार। सालों बाद नवाब खान का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग कहते थे, यह वही तांगाबान है जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह ने उसे सर बुलंद कर दिया। नवाब खान अभी आजदा था। वह कहता था, जो अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यही इसकी कहानी का असल सबक है। कहानी का मकसद बहुत तफसील से। इस पूरी कहानी का असली पैगाम यह है कि अल्लाह पर पूरा भरोसा, तवक्कुल रखने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता। चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, रोजगार कम हो या दुनिया ताने दे, अगर नीयत साफ हो और दिल में अल्लाह का यकीन हो तो आखिरकार वही इंसान कामयाबी पाता है। नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। नवाब खान ने हर मुश्किल में नेक नीयत से काम किया। उसने कभी अपनी मदद या अच्छाई का बदला उम्मीद नहीं किया। सच्चाई यह है कि अल्लाह नेक नीयत वाले इंसान के लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जो उसे खुद भी नहीं पता होते। मखलूकों की सेवा ही असली इबादत है। कहानी यह सिखाती है कि दूसरों की मदद करना सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि इबादत भी है। नवाब खान ने जब भी किसी गरीब, मजलूम या मुसीबत में पड़े इंसान को देखा, मदद की,
बिना यह देखे कि सामने वाला कौन है या उसके पास देने के लिए क्या है। दूसरों की बुराई का जवाब नेकी से देना सबसे ऊंचा किरदार सेठ करीमुद्दीन ने नवाब खान को अपमानित किया, मगर नवाब खान ने बदले में बदतमीजी नहीं की। जब सेठ घायल पड़ा मिला, उसने बिना सोचे समझे उसकी जान बचाई। इससे पता चलता है कि असली इंसानियत वही है जो दूसरों के बुरे बर्ताव के बावजूद अच्छी राह पर बनी रहे। सब्र और तवक्कुल का फल हमेशा मीठा होता है। नवाब खान ने गरीबी, तंगी और तानों में भी सब्र रखा। उसने कभी अल्लाह से मायूसी का लहजा नहीं अपनाया। आखिर में अल्लाह ने उसे ऐसी इज्जत दी कि वह एक यतीम खाने का नज़ीर बना, बच्चों की जिंदगी संवारने वाला बना। यह साबित करता है कि सब्र करने वालों को अल्लाह हमेशा बेहतरीन इनाम देता है। बड़ी दौलत दिमाग नहीं, दिल में होती है। सेठ के पास बहुत माल था पर दिल गरीब था। नवाब खान गरीब था पर दिल बहुत अमीर था। कहानी यह बताती है कि असल दौलत पैसा नहीं होती, वह चरित्र, दिल की सफाई और नेक सलूक है। नेकियों का असर कभी बेकार नहीं जाता। नवाब खान की एक एक